Hello students, welcome back to your English classes. Now have a look at chapter 2, page number 8, nouns. Now first of all, what do you mean by noun? Noun is a naming word. Noun क्या होता है? Naming words. Now look at your book. Rakesh, Peter and Rizwan are friends. In this sentence there are three names. Rakesh, Peter and Rizwan. Have a look, थोड़ा सा dark है वो. So these names are noun. They went to Delhi for an outing. Now in this sentence we can see that Delhi is highlighted. Why? Because it's a name of a place, that's why. Rizwan's sister Shubhana and Peter's brother Harry also accompanied them. देखो in this sentence हम लोग देख रहे हैं कि रिजवान की जो सिस्टर है and what is her name? Shubhana. So here sister and Shubhana, both the things are highlighted because sister is a relationship and Shubhana जो है एक name है. And in the next part brother and Harry is highlighted because it's a naming word. Rakesh went there with his mother. In this sentence where is the noun? Rakesh and mother. Rakesh is not highlighted because Rakesh is already highlighted in the very first sentence. They had also visited a zoo. Here zoo is a noun. They saw tigers, lions, giraffes, elephants, monkeys and leopards in the zoo. All these things are the name of animals, that's why ये highlighted है and it is noun. Rakesh offered some bananas to one of the monkeys. अभी देखो fruit का नाम है ना banana, that's why it is also a noun. Shubhana purchased some peanuts there. Again peanuts is highlighted because it is a noun. All of them were happy. Happiness could seen on their faces. अभी देखो यहाँ पे in the previous sentence happiness जो है happy जो है वो क्या है? It is not noun because वो एक state दिखा रहा है. And in the next sentence happiness ये sentence के beginning में ही आ जा रहा है and subject का role play कर रहा है. That's why it is a noun. In the previous chapter happy जो है वो एक adjective है. In this sentence happiness जो है subject का role play कर रहा है. That's why it is a noun. Now pay your attention. Rakesh, Peter, Rizwan, Shubhana, Harry, sister, mother, brother. These are the names of persons. Tiger, lion, giraffe, elephant, monkey. These are the names of animals. That we have already discussed. Let's see it once again. Banana, peanut, names of goods and things. ये किन चीज़ों के नेम्स है? बनाना एंड पीनट्स ये किसी चीज़ का नाम है और गुड्स के नेम्स हैं. Delhi Zoo, it's a name of a place. Happiness, state of feelings. Now move to next page. Have a look at the definition. Noun is a naming word which includes the names of both living and non-living things. Noun also includes feelings. अभी देखो यहाँ पे feelings means किसी भी state, sadness, happiness, ये सारे क्या हो गए? फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ नाउन. हमने पढ़ा था ना हैप्पीनेस कुड बी सीन ऑन देयर फेसेस. नेम ऑफ अ पर्सन तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई. नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स कैसे नाउन होगा? देखो हैव अ लुक. जैसे टेबल, चेयर, चॉक, बोर्ड, ये सारे इट्स अ नेम ऑफ थिंग्स. दैट्स वाई इट इज़ अ नाउन. आई थिंक डेफिनेशन इज क्लियर. नाउ हैव अ लुक. देयर आर फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज़ अ काइंड ऑफ नाउन. ये क्या हो गया? उसका काइंड हो गया. डेफिनेशन. कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ दोज पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स विच कम अंडर द सेम कैटेगरी और क्लास. कॉमन नाउन कौन से होते हैं? जो पर्टिकुलर किसी पीपल को, प्लेस को, किसी चीज़ को, एनिमल को और सेम कैटेगरी ऑफ थिंग्स को इंडिकेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हैव अ लुक. डॉग्स आर फेथफुल. अभी देखो यहाँ पे पर्टिकुलर कौन से एनिमल्स की बात हो रही है? डॉग्स की. दैट्स वाई ये नाउन हो गया. दिस सिटी इज़ वेरी क्लीन. इन दिस सेंटेंस हम लोग किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए कह रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ नाउन. हियर डॉग्स एंड सिटी आर कॉमन नाउन्स एज दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक नेम.
अभी देखो क्या हो रहा है, इनकी हमने नेम्स नहीं लिए हैं, दैट्स वाई कॉमन नाउन हो गया। सपोज़ मैंने कहा द बॉयज़ आर स्टैंडिंग, तो बॉयज़ में सारे बॉयज़ आ गए ना क्लास के, दैट्स वाई वो क्या हो गया कॉमन नाउन। और एंड इफ़ आई हैव सेड दैट राम श्याम रोहन आर स्टैंडिंग, तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। आई थिंक समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। हैव अ लुक एट द नेक्स्ट पेज। Definition: proper nouns tell us about special names. Example: the name of people, places, months, days, planets, special occasions, books, epics, etc. Means जो भी proper names होंगे, that तो we have learned previously only कि they comes under the category of proper noun. और वो प्रॉपर, जैसे मैंने कहा जनवरी इज़ वेरी, जनवरी द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी, तो क्या हो गया यहाँ पे फर्स्ट मंथ के बारे में बात हो रही है, दैट इज़ जनवरी, दैट्स वाई इट्स अ प्रॉपर नाउन। प्लेस: दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली और इंडिया क्या हो गए, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। इन द सेम वे हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल। जैक इज़ माई फेथफुल डॉग। अभी देखो डॉग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, कौन से कैटेगरी में आया, अभी हम लोग इसके प्रीवियस पार्ट में ही हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था। इट कम्स अंडर कॉमन नाउन बिकॉज डॉग जो है सारे डॉग्स को इंडिकेट कर रहा है, बट जैकी जो है पर्टिकुलर एक डॉग के बारे में कहा जा रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। बेंगलुरु इज़ अ नाइस सिटी। अब देखो बेंगलुरु के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। अब देखो बहुत सारे फेस्टिवल्स जो सारे होते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट ओकेजन्स जो पढ़ते हैं, दे ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। Now it is clear from the examples that the dog and city comes under the same category of common noun as they don't have specific names, whereas in case of proper nouns, dog and city are replaced by their specific names, Jackie and Bengaluru respectively. ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि डॉग और सिटी जो है इट्स अ कॉमन नाउन, और इन द सेम सेंटेंस जब जैकी और बेंगलुरु की बात हो रही है देन इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। इन द सेम वे वी कैन से दैट कि सारे जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल सपोज रामायण इज़ अ हॉली बुक एपिक ऑफ हिंदूज, तो रामायण जो है हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं। डेज: मंडे कम्स आफ्टर संडे, तो ये सारे जो है नेम्स आ रहे हैं। प्लैनेट्स, स्पेशल ओकेशंस, ठीक है, तो ये सारे दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। I think noun is clear to all of you. Okay, bye bye students.